Welcome to your chapter number 4 from the prose from the diary of Anne Frank by Anne Frank. In this chapter, it's one sort of an autobiographical element, and before going to that, because the chapter is very simple and that's written on a classroom environment, and in the first part she describes about her family, and in the second or on the later part she describes about her classroom environment or the school. But before to that, I would like to go into the context of the chapter, that why and how this chapter has come into your course. First of all, this chapter is basically written on the environment of World War II, when the Germans took hold of the Holland or Netherlands. And this chapter is almost similar to the address, the last lesson, and the enemy. These are the chapters especially in the address is there in the 11th class. This is a story of a wartime, you can say. The last lesson and the enemy are there in the 12th class. So this chapter is almost similar to those chapters in the human sentiments, and especially the pain that human beings face after the war. Now in this chapter, Anne Frank remained in hiding for 2 years almost, from July 1942 till August 1944. And all his family members died during this period. She was a Jewish girl, and they had a great threat from Nazis, especially from the German soldiers. You might have heard the name of Hitler. Hitler was dead against the Jews, and they had been kept in the concentration camps, and after that one they died. Some of them died due to fever. Typhus is one of them. Typhus is one kind of a fever, bacterial fever you can say. And some other died due to the painful situations और अनवारंटेड सिचुएशंस गिवन इन द कंसंट्रेशन कैंप्स. यातना कैंपों के अंदर उनको रखा गया बहुत टफ कंडीशंस के अंदर. देन this chapter is basically an excerpt from her diary, the diary of a young girl. Originally it was being written in Dutch. ये डच भाषा में लिखी गई थी, and then being translated into the many languages all over the world. Her father was the only survivor, and they all were being killed during that 2-3 years of period. So her diary is considered to be a mature and insightful mind work that provides intimate examinations of daily life under Nazi occupation. She also became most discussed Holocaust victims. Means this story is totally based on, of course the story doesn't deal with that, but you can say pretext of that one, or in which environment this has been written, that is more important to say. Because this is a story written by a 13-year or a diary written by a 13-year-old Jewish girl who were having a great threat from the Nazis during that time, during the World War II, especially when Nazis took over the Holland, Netherlands especially. So in the first part of the chapter, she explains about her personal and family life, and in the second part she explains about a school environment or the classroom environment quite gracefully. So there are some other points also about the chapter which I would like to discuss. Her father is there, that is of 36 years old. His name is Otto Frank. He lives in Holland. And the mother is 25, name is Edith Hollander Frank. Sister is there of 16 years, that is Margit, born in Frankfurt in Germany. In 1926 she was born, means her sister was born, and they migrated to Holland in December 1926. She is a girl of 13 years, that is your Anne Frank,
and she lived from 12 June 1929 till February or March 1945. Means she lived only for 16 years, and in those 16 years she is having a wonderful contribution, or this writing piece is written by her when she was 13 years old. Now, Kitty is the name of a diary. She keeps a diary because she can write very intimate and personal things in that. So name of a diary is Kitty, and she considers this one as dearest and most intimate. New teacher was there, Mrs. Cooper's was there, and she was there at her Montessori nursery school. Maths teacher Mr. Kissing is there, who punishes her by giving essays to write when she was quite talkative in the class and was not stopping by her habit. Friend San, S-A-N-N-E, friend San is also being mentioned, and she was good at poetry. Now coming on to the three best quotes of the chapter, the three best things of the chapter which I would like to say. Anne Frank says, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है आदमियों की अपेक्षा। आप उस पर कुछ भी लिख दो, पेपर कभी वापस नहीं बोलता है। नंबर 2, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। जितने अध्यापक होते हैं ये सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, जिनका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, अर्थ के ऊपर ये इस टाइप के प्राणी या जंतु होते हैं। थर्ड थिंग, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स बेसिक ट्रेट। बातूनी होना या बात करना ये स्टूडेंट की एक बहुत ही आधारभूत ट्रेट होती है, विशेषता होती है। नाउ लेट मी कम ऑन टू द थिंग, जो कि एक पनिशमेंट दी गई थी जब एक क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। मिस्टर किशिंग जो मैथ्स टीचर होता था, what he has given him to write. First, he has given him a essay to write on a chatterbox, a chatterbox. Then he gave her an incorrigible chatterbox, incorrigible chatterbox, and at the last, he gave her to write quack, 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 said Mrs. or Mistress Chatterbox. These were the three essays given by her. So this chapter is of course not at all tough. It's a simple interpretation by her. एक बार फिर मैं आपको हिंदी में बता दूं कि ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान लिखा हुआ एक चैप्टर है। इसमें एन फ्रैंक, एक आपके जो है कोर्सेज में 11th में द एड्रेस चैप्टर आएगा और 12th के अंदर 2 चैप्टर आएंगे, द लास्ट लेसन एंड द एनिमी चैप्टर। ये वार स्टोरीज़ हैं। ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं एक वॉर से रिलेटेड एक स्टोरी टाइप है। जब ये एक यहूदी लड़की थी और जब ये इनको क्या हुआ कि ये लगभग 2 साल तक इनको जो है छुप के रहना पड़ा अपने पापा के ऑफिस के अंदर, परंतु बाद में इनके साथ कुछ धोखा हुआ और वहाँ से इनको यातनाओं कैंपों के अंदर भेज दिया गया। यातना कैंप के दौरान इसकी बड़ी बहन की मृत्यु हुई और ख़ुद ये बाद में भी इसकी मृत्यु भी एक टाइफस करके एक फीवर होता है, एक बुखार का नाम है, वो एक बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से इसकी भी मृत्यु हो गई। 16 साल की उम्र में ये लड़की इस पृथ्वी को छोड़कर चली गई, परंतु 13 साल की उम्र में इसने ये, जो कि इसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक डायरी दी गई थी जिसका नाम इसने किटी रखा था, जिसमें ये अपने कुछ आंतरिक अनुभवों को लिखती थी और जो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। वास्तव में ये डच भाषा में लिखा गया था शुरू में ओरिजिनली, और उसको बाद में ट्रांसलेट करके विश्व की बहुत सारी भाषाओं में एक तरह से उसको अनुवादित किया गया और इधर उधर काफ़ी प्रकाशन हुए। इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स और टीवी सीरियल्स और वो भी बने। तो नाजी, एक तरह से नाजीज जो जर्मनी के हिटलर की पार्टी थी, नाजी, उसके दमन के कारण हॉलैंड के ऊपर या नीदरलैंड के ऊपर आक्रमण हुआ था और इनको जो है वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। 2 साल तक ये छुपे हुए रहे और आखिरी में जो है ये मारे गए। तो इस केवल इनका पिताजी जो है बचा था
उसने जो है इस की डायरी जो इसको दी गई थी उसको जो है प्रकाशित करवाया और ये विश्व की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। शायद कोई भी ये नहीं जानता था, खुद भी इसको विश्वास नहीं था इस लड़की को कि कोई मेरे 13 साल की कुछ इस तरह से लिखी हुई जो है चीज़ों को पढ़ेगा इस दुनिया में। तो ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल करके जो है, जो इसकी डायरी का नाम था, वैसे नाम उसने उसका किटी रखा था जिसको वो सबसे अपने नज़दीक समझती थी। तो इस तरह से उसमें से लिए गए कुछ ये अंश हैं जो आपके सामने एक चैप्टर के रूप में दिए गए हैं। ये काफ़ी प्रेरणात्मक चैप्टर है। क्यों? क्योंकि जो है 13 साल की एक ऐसी लड़की ने लिखा जो यातनाओं के दौरान गुजर रही थी और फिर जो है उसका प्रकाशन हुआ और विश्व भर में जो है बहुत सारे विद्यार्थी और व्यक्ति जो है इसको एक काफ़ी अच्छे, यूँ कहिए, लेखन के लिए इसको पढ़ते हैं। और ये जो है सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली जो उन यातनाओं के दौरान एक कैरेक्टर था, एक पात्र थी, इसको पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। चैप्टर 2 भागों में विभक्त है। पहले चैप्टर में इसकी जो है पर्सनल लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है और सेकेंड भाग में जो है ये अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट या स्कूल एनवायरनमेंट को दर्शाती है। इसके पिताजी 36 साल के हैं जिसका नाम ओटो फ्रैंक है, हॉलैंड में रहते हैं। माँ 25 साल की है, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है। इसकी 16 साल की एक बहन भी है, मार्गरेट, जो जर्मनी में पैदा हुई 1926 में। बाद में वो हॉलैंड चले गए थे और ये खुद 13 साल की है जब ये डायरी लिखती है। 12 जून 1929 को पैदा हुई है और फरवरी मार्च 1945 में इसकी मृत्यु हो गई। 16 साल का इसका कुल जीवन काल रहा। किटी इसकी डायरी का नाम है जिसको ये सबसे प्यारा समझती है और अपने दिल के करीब समझती है। इसके कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, ये ज़्यादा दोस्त नहीं मानती अपने। इसके नए टीचर का नाम मिसेस कूपरस है जो कि इसकी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल की टीचर थी जिसके साथ ये लगभग 6 साल तक रही। मैथ टीचर मिस्टर किसिंग हैं जो इसको पनिश करता है ऐसे लिखने के लिए जब ये बार बार क्लास में बात करती है। और इसकी एक फ्रेंड है सैन, SANNE, सैन, जो कि काफ़ी अच्छी है पोइट्री लिखने में। इस चैप्टर में 3 बातों का मुख्यतः बताया गया है। 3 कोट जो है, इस यूँ कहिए कि अच्छी जो लाइनें हैं वो ये हैं। पहला कि पेपर के अंदर आदमियों से ज़्यादा पेशेंस होता है। पेपर के अंदर आदमियों से ज़्यादा पेशेंस होता है। दूसरा बोला गया है कि टीचर सबसे ज़्यादा जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके पृथ्वी पर वो प्राणी होते हैं। और तीसरा, क्लास में बात करना एक बच्चे की आधारभूत विशेषता होती है। मिस्टर किसिंग 3 जो है प्रोज के पीस लिखने के लिए देता है, एसेज। जब ये ज़्यादा बात करती है क्लास में एज ए पनिशमेंट, पहला बोलता है इसको एक चैटर बॉक्स पर लिखने के लिए, बातूनी, एन इनकॉरेजेबल चैटर बॉक्स दूसरी बार देता है, ना सुधरने वाली बातूनी। और तीसरी बार लिखने के लिए बोलता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, काँ 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 करने वाली चैटर बॉक्स। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और ये एक तरह से यूँ कहिए कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है जो इसने अपनी डायरी में लिखा। आया क्यों आपकी कहानी में, आपके चैप्टर में या आपके कोर्स में? क्योंकि ये एक प्रेरणात्मक टाइप काफ़ी डिस्क्रिप्शन है जिसको लिया गया कि ये क्या 13 साल का बच्चा भी कितना अच्छा लिख सकता है कि उसको वर्ल्ड वाइड पढ़ा जा सकता है। तो ये डच भाषा से इंग्लिश में एक अनुवादित रूप आपके सामने पेश किया गया है। और बाकी सारी चीज़ें वैसे मोटे तौर पे मैंने सारी बता दी हैं। बाकी सारी चीज़ें हम जब ट्रांसलेशंस करेंगे इसका नेक्स्ट सेक्शन में, तब वहाँ पे मैं नरेट करता हुआ चलूँगा।